All right. Welcome back, my regular viewers, listeners, and watchers. And of course, if you happen to be here for the very first time, welcome. Before I go any further, my name is Rahul George, India's premier hypnosis life healer coach and your personal guide. And a very warm welcome to all of you tuning into the Hypnosis Life coaching journeys. As you know, this is a pod that has been created for you, the healer, for you, the coach, on your journey, especially if you are at that early stage of your career, early stage of your journey, where it's very easy to get stuck. It's very easy to get caught up in our own minds. And that was what has inspired me now for more than 100 episodes to keep looking out there in the universe to coaches and healers who were like where you are now and who have gone beyond that in building out their dream, their mission. And so, my intention, of course, is that when you hear their stories, it inspires you and it reminds you that, you know what, if they can do it, so can you. So, with that, let's put our hands together and welcome our special guest today. Tanuji, this is, of course, your cue. आप अपना camera on कर लेना. Good to have you here. Thank you so Welcome much, to Life India. Coaching Journeys. Thank you so much, sir. Thank you so much. My pleasure. Like I said, the idea here is even right now, the idea is we keep it very informal. आपको तो मालूम है मेरा नाम राहुल है. आपको सुना होगा. So just call me Rahul. You know, the idea being that we are in the flow because जब हम flow में होते हैं, especially as healers and coaches, तब हमारा वो जो मैजिक होता है वो और भी फ्लो होता है। सो दैट्स द Right. ओनली ऑब्जर्वेशन इफ आई मे मेक कि मेरा नाम ऑफ कोर्स राहुल है, सो जस्ट कॉल मी राहुल एंड विद दैट आई एम गोइंग टू टर्न इट अराउंड बिकॉज़ दिस इज़ अ पॉड अबाउट you and your journey. So I'd love for you to, you know, maybe start with this, the answer to this question कि जब कोई आज अगर आपको पूछता है कि तनु जी, what is it that you do? Right? What do you typically tell them today के तौर पे? आज अ, हेलो, मेरा नाम कन्नू है और मैं आज के डेट में मैं एक ट्रेडर हूँ, लाइफ कोच हूँ एंड ट्रेडिंग कोच भी हूँ। हुँ, मेरी जर्नी जो थी वो धीरे-धीरे आगे आएगी। फिलहाल राइट नाउ मैं एक लाइफ कोच हुँ। एंड ट्रेडिंग कोच भी हूँ। So I'll pause there because इसमें जैसे बोलते हैं स्टोरी में there are different angles we can go on, right? ट्रेडिंग अगर आप बोलेंगे तो राइट, ऑब्वियसली देयर आर पीपल दैट आर वेरी एनामर्ड बाय कि काफ़ी लोगों स्पेशली हीलर्स कोचेस जो होते हैं कहीं ना कहीं उनके मन में ये हुआ होगा कि यू नो आई विश आई कुड ट्रेड इन द मार्केट्स सो मे बी वील कवर दैट एज वेल टुडे बट एज आई सेड ये वाला जो पॉड है इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू यू नो टू गेट अ सेंस ऑफ योर जर्नी जो आप आज कहते हैं दैट द थिंग्स दैट यू डू टुडे वो एक दिन में तो नहीं हुआ राइट so it was obviously a journey. So I'd love for you to take us back in time कि ये हुआ कैसे? Like how did this journey come about? Where today, as you say, you are a very interesting mix of being a trader and a coach. And when you say coach, which type of coaching do you do? द कोचिंग लाइक फ्रीक्वेंसी कोच। Exactly. समटाइम पीपल फील स्टक Perfect. So why I asked that question तो ये अभी के लिए व्हाई आई आस्क्ड द क्वेश्चन वाज़ बिकॉज़ एक तो आप टेक्निकल वाला ट्रेडिंग अगर ट्रेडिंग की बात करें एंड दूसरा इज़ एनर्जी। सो आई एम वेरी या क्यूरियस टू नो मोर अबाउट बोथ बट व्हाट वी नॉर्मली डू एट दिस स्टेज इज़ आई वुड लव फॉर यू टू शेयर विद अस आप जर्नी शुरू कहाँ से हुआ? लाइक हाउ डिड यू कम ऑन टू दिस जर्नी ऑफ यू नो द ट्रेडिंग एट वन like एक हाथ पे one on the one hand trading है on the other there is frequency coaching. I'm very fascinated and curious to know कि ये journey कैसे हुआ आपके साथ? Like how did all of this come together? Take us as far back as you want to कि आपके अगर मैं आपको पीछे लेकर जा तो मैं पहले एक हाउसवाइफ थी हुँ, जो बहुत अर्ली एज में मैरिड हो गई। हुँ, लाइक आई गेट मैरिड इन 22 की एज और मैरिज के बेबी एंड हाउसवाइफ। हुँ, अर्लियर मैं सीए की स्टडीज कर बट बिकॉज ऑफ मैरिज जो वो मेरी सीए की स्टडीज ड्रॉप करनी ठीक है। फिर बेबी सारा घर का काम वो सब चीजों में लगे रहे लाइफ कहाँ जाती रही पर कोई एम नहीं। फिर ऑल ऑफ सडन इट्स लाइक मन में एक आया कि मुझे भी कुछ बनना है, मुझे भी कुछ करना है। वाओ! तो 3-4 चीज़ें ट्राई की, कभी कुछ नेटवर्किंग डिजिटल नेटवर्किंग, हुँ, चेन मार्केटिंग,
दोस काइंड ऑफ थिंग्स आई ट्राइड। देन सीए की स्टडीज फिर से स्टार्ट की, क्लासेस ओपन की टू टीच मैथ्स, बट कुछ भी सेटल नहीं हो रहा था। फिर वही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये सब चीजें अगेन एंड अगेन आ रही थी। देन सडनली और लकीली, एज आई ऑलवेज सेज कि मैं ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, एक वीडियो पॉपअप हुई यूट्यूब पर, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब मेरे आगे आया, देन आई स्टार्टेड सेइंग थैंक यू। बस मैंने एक ही चीज सीखी, दैट सेइंग थैंक यू। तो मैंने थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना स्टार्ट किया। यू वॉन्ट बिलीव मैं क्या करती थी, मैं मेरी स्कूटी लेती थी, ऐसे ही राउंड मारने के लिए निकल जाती थी। और जब निकलती थी, जितने भी ट्रीज दिखते थे, जितने भी ट्रीज, थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड मेरी लाइफ में इतना ज्यादा हुआ कि मेरी लाइफ में इतना ज्यादा हुआ, मुझे शेयर मार्केट मिला। वो जो डे है मैं कभी नहीं भूल सकती। चैन मार्केटिंग मुझे समझ में आ गई थी कि मेरे लिए नहीं है, जस्ट बिकॉज वो सेलिंग थिंग्स 10 में से 8 पीपल्स को सैड करके 2 पीपल्स में ग्रो एंड फर्दर। यस, आगे ग्रो करते, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं ग्रो करते, बट दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। दैट्स व्हाई आई वाज लाइक मुझे मूव ऑन हो रहा है, होना है। तो ग्रेटिट्यूड ने मुझे ट्रेडिंग दिखाया। यू वोंट बिलीव, ऑन 19th August, I started learning, and 21st August, I book a profit of 1,12,000. That was a drastic thing for me. से पहले मैं कभी ट्रेडिंग का, माय हस्बैंड यूज्ड टू डू दैट। मेरे हस्बैंड कहते थे आजा तू भी देख ले क्या है क्या नहीं। आई वाज लाइक नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। बट जब मैंने सीखा, आई वाज लाइक, को मैं उनको बोल रही हूँ ये ना बहुत ऊपर जाए, ये ऐसी कैंडल बनी, ऐसी कैंडल बनी, एंड नेक्स्ट डे ऑल ऑफ सडन जंप किया एंड 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद माय हस्बैंड इज लाइक मैं क्या करूँ, इसको मैं बुक कर लूं कि नहीं होल्ड करूं। दोस सिनेरियोज वर देयर। देन आई वाज लाइक नहीं, इसको आप बुक करो। फिर मैंने उनको वो गाइड करना स्टार्ट किया कि अभी ये बॉटम पे है, इसको अगेन बाय करो, फिर ऊपर जाके फिर सेल करो, फिर बाय करो, सेल करो, दैट प्रॉफिट गोज टू 1,30,000। तो उसमें जो मेरा प्रॉफिट था, दैट वाज ऑन माय फर्स्ट डे आई अर्न लाइक 30,000 प्रॉफिट। तो इट वाज लाइक ऑसम। मेरा जो ग्रेटिट्यूड के ऊपर और पे और बिलीव बनता। फ्रॉम बीइंग अ हाउसवाइफ, मैं बहुत सारी चीजें ट्राई करके हट चुकी कि क्या करूं। My income never goes 5,000 per month or the 7,000 after taking classes at home. From the share market, I start earning 10,000 a day, 12,000 a day. फिर it was like hunger और ज्यादा आता रहता है, greediness. Obviously, we are human being. एक रास्ता दिखता है, फिर दूसरा दिखता है, फिर तीसरा दिखता है, एक अचीव किया, दूसरा milestone, that way. From being nothing, I become 10,000 per day person. फिर उसके बाद नहीं, मुझे और अचीव कर। देन फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, देन आई गो टू द चक्रा हीलिंग। फिर मैंने मेरे चक्रास को अलाइन किया। देन वो जो प्रॉफिट था वो 50,000 पे पहुंचा पर डे। फिर उसके बाद फिर से हंगर आ रहा, नहीं इतना लिमिट तो अभी अबंडेंस है तो व्हाई नॉट टू ग्रैब दैट। फिर उसके बाद थोड़ा अफर्मेशंस, एनएलपी टेक्निक्स, हिप्नोसिस, वो सब चीजों का आइडिया लगा। फिर उसके बाद दैट प्रॉफिट गोज 11 lakh per day वाला। I started earning 5 lakh, 11 lakh, 30 lakh, that kind of person I become. मैंने एक चीज समझी, जब हम एक ऐसा चढ़ते जाते सुपर मैन के जैसे, एक फॉल भी, द सेम फॉल केम इनटू माय लाइफ। ऑल ऑफ सडन ऐसा आया, मेरे को लॉसेस, जस्ट लाइक इन अ डे आई गोट अ लॉस ऑफ 20 लाख। उसकी वजह से आई वाज लाइक फीलिंग सो स्टक। अब क्या करूं, ये कैसे हो गया मेरे साथ। वो जो ग्रेटिट्यूड की वजह से जो ट्रस्ट आया था ना यूनिवर्स पे, वो एकदम से फॉल हुआ, एकदम दिल बैठ गया, क्या करूं। आई वॉज इनटू कुछ भी करके मेरे को वो वापस मेरा वो सिनेरियो लेकर आना है। यहाँ पर भी रुपए भरे, वहां पर भी रुपए भरे, आप मुझे कुछ चीजें सिखा दो, आप मुझे कुछ चीजें सिखा दो। लाइक एवरीवेयर आई वॉज लाइक, यहाँ से कुछ खरीदा, यहाँ से कुछ खरीदा, कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। माई हस्बैंड इज लाइक, यार इसको देख देख कर उनको टेंशन होने लगी। फिर हीलिंग्स भी करवाई, नो डाउट वो इम्पैक्टफुल हीलिंग्स, यू वोंट बिलीव राहुल, इम्पैक्ट। मैंने हीलिंग करवाई, मेरी मनी सिनेरियोज नहीं चेंज हुए, बट माय हस्बैंड इनकम लिटरली ट्रिपल्स, लिटरली ट्रिपल। हीलिंग मैंने मेरी करवाई, उनके जॉब सिनेरियो, उनकी इनकम सीधा ट्रिपल हो गई, 3 times। यूनिवर्स इज लाइक, मैंने बोला था कि मेरे जो वो 20 लाख का लॉस हुआ था, मुझे वो वापस, वो 20 लाख का लॉस मेरी हस्बैंड की इनकम के थ्रू। आई वाज लाइक क्या आ रहा है यूनिवर्स। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, फ्रॉम हाउसवाइफ, फ्रॉम नथिंग टू अचीवर ऑफ 30 लाख, 11 लाख, 15 लाख अ डे। इस तरीके से मेरी जर्नी। फिर जो फॉल आया ना, फॉल के बाद मैंने एक चीज समझी,
थैंक यू इज़ नथि मतलब सफिशिएंट नहीं, यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं जिसको हमें रिकॉग्नाइज़ करना ज़रूरी है, समझना ज़ सिर्फ़ एक थैंक यू करके यस, हम एक लेवल तक पहुँच कुछ चीज़ें और अनसीन थिंग्स हैं जिनको हमें ग्रैब करने की ज़रूरत है, पक्का होता है। तो उसी के लिए मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की एंड देन फ्रीक्वेंसी एक्चुअली होती क्या है, लाइक अगर आपने सुना होगा एक राजा भी रंक बन जाता, यस बट बिल्कुल। लेकिन उसको वापस उठना आता है जस्ट बिकॉज़ उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। इसे एक रंक को अगर आप राजा बनाकर बिठा दोगे एक लेवल पर, लेकिन वो विदिन फ्यू टाइम, मे बी 6 मंथ, मे बी 4 मंथ वापस नीचे आके गिरेगा। द सेम थिंग हैपेंस विद मी। फ्रॉम 0 टू मैं 30 लाख, 40 लाख वाला सिनेरियो भी उतना ही धड़ाम जस्ट बिकॉज़ मेरी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं थी। तो कहते हैं ना एक टाइम बीइंग के लिए तारे चमक जाते। उस टाइम के लिए मैंने मेरी फ्रीक्वेंसी हाई ज़रूर की थी, लेकिन फॉर द लॉन्ग टाइम इट्स वाज़ नॉट लाइक दैट वे। इसके लिए मुझे समझना था कि एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी होती, तो इसके मैं मोर डीपर, डीपर, डीपर गई और आज आपके सामने खड़ी हूँ। That's beautiful. That's amazing. I love the story. I mean, the way you've described it. So this, what you described happened over how many years? आप वैसे देखो तो कितने सालों में ये हुआ था? मेरी अर्निंग जर्नी जो थी वो 6 मंथ्स थी। 6 मंथ्स के अंदर आई रीच टू दैट 30 लाख वाला सिनेरियो। फिर 1 मंथ के अंदर वो फॉल आया। फिर 6 मंथ्स अगेन मुझे उससे खड़े होने में लगा जस्ट बिकॉज़ मैं एक डिप्रेशन मोड में वो अंडरस्टैंडिंग जैसे लर्निंग है, लर्निंग लाइफ लॉन्ग, लेकिन एक लेवल समझ में आ गया था कि हाउ टू रेज़ माय लेवल अगेन बैक। वो उससे मैं वापस उभर पाई विदिन 6 मंथ्स। तो जर्नी अगर आप लोगे तो मेरा 1 ईयर, 1 एंड हाफ ईयर और लर्निंग तो अभी भी कंटिन्यू ही है। So basically, ऐसे आप बोलेंगे तो you would have started around 2024 somewhere there, right? उससे पहले नो, 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 उससे पहले। तो how मेरे long has को that journey been? Like what you described now, ओके, जब से आपने शुरू किया कि आपको लगा कि हाँ, मुझे कुछ करना है। इनफैक्ट आई हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन फॉर यू। ये जो एक वक़्त पे आपको वो जो आइडिया आया, इट्स लाइक वी माइट हैव ए स्लाइट नेटवर्क इश्यू सो वी विल हैंग ऑन टिल you're back, Kanu. नो हाँ, नाउ you're एम back. आई ऑडिबल? योर ऑडियो इज़ ओके, वर्किंग, वीडियो अटक चुका है बट वीडियो चल रहा है, आई मीन ऑडियो चल रहा है, सो वील गो विथ इट, नो वरीज़। यू कैन हियर मी ओके, राइट? येस आई कैन हियर यू। तो ये अपना ऑडियो वाला पॉडकास्ट, नो वरीज़। ओके, सो व्हाट आई वाज़ आस्किंग वाज़ कि अम, इफ यू लुक सो यू सेड समथिंग अबाउट को एक वक़्त राइट। टेल अस अबाउट दैट जब जैसे वो स्विच चेंज हुआ, वो गियर चेंज हुआ, उसके बारे हुँ, में थोड़ा हुँ। बताइए? मुझे कुछ करना है वाला जो सिनेरियो था, मोस्ट ऑफ पीपल मैं ऐसा बोलूँ ज़्यादातर लोगों का कोविड में बहुत सारे लोगों का वो स्विच आया, वैसे ही मेरा भी स्विच आया जस्ट बिकॉज़ मैं घर पे रह रही थी, घर इट्स लाइक मैं क्या करूँ? इसके लिए हमें बेस्ड होना पड़ता था, घर का सारा काम और वो सब चीज़, सम सिनेरियोज़ भी होते थे। ऐज़ अ आप सोशल बीइंग में रह रहे हो, छोटी-मोटी चीज़ें होती रहती हैं। तो खुद को ऐसा लगा यार नहीं मुझे कुछ बनना है। हुँ, स्पेशली मुझे मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स थे जो लाइक मेरी दीदी थी, तो हुँ, उनके लिए कुछ करना था। हुँ, मेरा ब्रदर था, मेरे को उसके लिए कुछ करना था। जस्ट लाइक मेरे मॉम एंड डैड कोविड से पहले एक्सपायर हो गए थे। तो माय ब्रदर इज़ टू मतलब यंगर देन मी। हुँ, He is like that time in COVID, he was like 17, 18 years old. तो आई वाज़ लाइक मुझे कुछ करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा? तो एक वो फीलिंग आने लगी कि हाँ, रिस्पॉन्सिबल बनना है मुझे। हुँ। तो वो जो एक किक था वो मुझे उस टाइम पे मिला कोविड में। So you basically described the last 6, 7 years. येस। So that's beautiful. I mean, the way you've described it, and obviously you've had some very deep lessons from it. Um, so, so like I said, in our story in the pod, we start with telling us a little bit about what you do, and अभी जो आपने from past to present तक बताया है, right? Now let's spend a राइट। little more time, and I'm sure this will be of a lot of interest and लोगों को वो बहुत दिलचस्प है कि they want to know more about what you do today. Because one, though you're राइट। talking about trading, and two is you're talking या about frequency. So tell us a little bit more राइट। about like आज के ज़माने में, like in today's day and age, where have you reached on the journey? Have you started to build a community, or do you work with people one on one? Like how do you coach other people today? थोड़ा और बताइए. Tell us a little bit more on that.
और दैट ना इनिशियली व्हाट आई स्टार्टेड ना, वही जैसे मैं घर पे रही हूँ, मैंने बहुत सारे कम्युनिटीज में जहाँ करेक्ट। पर भी वहां पर भी थ्रू दैट कम्युनिटी में कनेक्शन में, तो जब मैं कनेक्शन में आई तो मैंने देखा अरे मेरा दुख तो कुछ मुझसे ज्यादा दुख लेकर, तो जब उनके साथ कनेक्ट किया, दुख समझा उनका दर्द, तो पता चला कि हाँ जो उनका दुख है वो एज कम्पेयर मी बहुत ज्यादा डीप है, उन्होंने बहुत ज्यादा फेस भी। आई वॉज फ्रॉम अ सेटल्ड फैमिली, मेरा इतना ज्यादा चीजें नहीं, यस मेरे अंदर ड्रीम्स हैं और कुछ बड़ा बनने की बड़ी बनी। हम्म, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं जिनको बस उससे बाहर निकल जाए उतना भी इनफ है, लोग बाहर भी नहीं निकल पाए। मैं तो हम्म, कम से कम रास्ते पे खड़े होकर सपने तारों के, चांद तारों के सपने, देन आई कम टू नो कि लोगों को निकालना बहुत जरूरी है, जस्ट बिकॉज वो एक डीप। राइट। ये आगे जाने से चीज पूछूंगी, मेरी अभी वीडियो दिख पा हाँ, हाँ, your video या is अभी clear. भी ऑडियो? नहीं, नहीं, all good. So, ओके, ऑल just गुड। for context, like I said, this is a very informal pod कि हम लोग it's या both on video and audio. So that's why for me, I'm like, it's more the flow with what you're tapping into and sharing. उसमें ज़्यादा power है, right? ओके। तो जिन या लोग या जो लोग ये while for people who are listening as if they're listening to the behind the scenes अपना BTS जैसे हो रहा है, all of this is part of their, them absorbing the story and realizing कि हाँ, if Kanu can have this kind of a story, then whatever दलदल में या जो भी अभी हो रहा है अपने लाइफ में, उससे हम निकल सकते हैं। That is really, if राइट। you ask me, वो जैसे बोलते हैं ना, it's a story of hope and आगे माने ऊपर आना and being able to come like rise out of, वो हमारा इंटेंशन है। सो दे विल डेफिनिटली लव दिस होल थिंग। सो गो अहेड। सो यू वर सेइंग कि यू नोटिस्ड देयर वर मेनी पीपल एट डिफरेंट हम्म। स्टेजेस। मैंने वही नोटिस किया, क्योंकि क्या हुआ था, एज कंपेयर देम मेरा थोड़ा लेवल हाई है, मुझे ये समझ में आया। हुँ, तो मैंने उनको हैंड देना स्टार्ट किया, हाथ देना स्टार्ट किया कि तुम उभरना है, यस आई विल हेल्प यू आउट हुँ, फ्रॉम दैट। हुँ, तो जब मैंने उनको देखा, उनको समझा, हुँ, तो मुझे खुद को समझ में आया कि मैं उनको कैसे हेल्प आउट कर सकूं। हुँ, दिस इज द जर्नी फॉर फ्रॉम बीइंग लर्निंग टू टीचिंग। हुँ, मेरा जो अंदर का मन आया कि मुझे सिखाना है, कम्युनिटी बिल्ड करनी है, दिस इज जस्ट बिकॉज मुझे दूसरों को रेज करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, यहाँ पर 2 लाख रुपीज पे कर रहे हैं, पर 5 लाख रुपीज पे कर रहे हैं, इतने रुपीज पे कर रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम हुँ, दैट। हुँ, स्टिल दे वर लाइक, चाहे कोई तुम एक, चाहे 5 मिनट का ही कॉल किसी को क्यों ना चला जाए, उतने में ही उनको ऐसा हो जाता है कि चलो मेरे साथ कोई खड़ा है। दैट फीलिंग कि हाँ मेरे साथ कोई है इज हुँ, मोर देन एनीथिंग। ट्रू, तो जब वो सपोर्ट किसी को मिल जाता है ना, उनको ऐसा लगता है कि यस हुँ, देयर इज समथिंग, हुँ, देयर इज समवन फॉर मी। करेक्ट, तो उसकी वजह से फिर मैंने इसको कोचिंग को स्टार्ट किया। इनिशियल फेज में मैंने काउंसलिंग ही की कि वन ऑन वन किसी की अगर प्रॉब्लम्स मुझे पता चली थ्रू ग्रुप्स, थ्रू व्हाटएवर द वे इट इज, हुँ, कहीं पर किसी के मैसेजेस आए हुए हैं, तो मैंने उनको सामने से अप्रोच किया और फिर उनको थोड़ा बताया कि आप ऐसा कर सकते हो, यू कैन राइट ओपन ओपन लेटर्स, हुँ, डू ईएफटी, मेनी मोर थिंग्स यू कैन डू फ्रॉम दैट। हुँ, तो जब वो उससे कम आउट हो रहे थे तो उनके थैंक यू मैसेजेस भी आते थे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ये तो वन ऑन वन कर करके मैं कितनों को करवाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा एक हैप्पीनेस प्रोग्राम करके सेशन स्टार्ट किए, हुँ, जिसके अंदर ऑन द डेली बेसिस मैं लेती थी, मंडे टू वेडनेस फ्राइडे। तो जब मैं वो लेती थी, लोगों की एनर्जी ऐसा सुपर हाई हो जाती थी, आई वाज लाइक वाओ, यूनिवर्स ने मुझे मीडियम बनाया है करेक्ट, फॉर डूइंग समथिंग। क्योंकि कैसा होता है, वही फ्रीक्वेंसी का मेन रीजन वही होता है कि सिर्फ एनर्जी हाई करना, हम जीते किसके लिए है। अगर हमने कुछ अर्न भी किया है, एक दिन खुश रहे, 2 दिन खुश रहे, उसके बाद वापस वो सैड मोमेंट में, करेक्ट, दैट डजंट मेक सेंस। राइट, फ्रीक्वेंसी को कि अभी जैसे आपने सुना होगा, कोई सड़कों पे तो भी बहुत खुश है, कोई हुँ, महलों में तो भी खुशी नहीं है। हर कोई जो यहाँ पर बैठा है, वो हुँ, एक खुशी के लिए बैठा है, एक हैप्पीनेस, जब उसको वो हैप्पीनेस में एक मिलियंस वाली स्माइल जो, तो इसके लिए मैंने वो हैप्पीनेस प्रोग्राम, एटलीस्ट वो हैप्पीनेस प्रोग्राम जो को खुशी मिलनी स्टार्ट हो जाए, बस उतना ही मेरे लिए इनफ है। थ्रू दैट फिर से जुड़ने लगे, आने लगे, मुझे बोलने भी लगे कि हाँ आप अपने और कंटेंट डाल, तो मैंने थोड़ा बहुत कंटेंट डाल, फिर एक कम्युनिटी भी बनाई जिसके अंदर मेरा ऐसा रहता है कि मैं फुल ऑन हैंड होल्डिंग दूं। हुँ, तो मेरी कम्युनिटी भी है उसके अंदर। अभी उसमें ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो अभी मैं फुल फ्लेश नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और निकालना है जिसमें मैं
सिर्फ 1 और 2 चीज़ दूँ और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वैसा अभी मेरा उसके ऊपर वर्कआउट चल रहा है। ये मैंने उसको नाम दिया यिन एंड यांग एनर्जी, जो हम वर्कआउट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यिन एंड यांग। अगर हम अपने यिन और यांग को बैलेंस कर लेते हैं, तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मेरा जो अभी प्रोसेस है वो यिन एंड यांग तक पहुंचा है, एंड साथ में फ्रीक्वेंसी कोच तो मैं हुई, तो लर्निंग नेवर एंड्स। Beautiful. So, I mean, there's so much to unpack in that. It's amazing how आपने वो at the right time you just followed your instinct and you made yourself available. Like you said, I am the receiver, I'm the vessel, and I'm here to help other people. Right? राइट। आपने हाथ बढ़ाया and लोगों ने बोला हाँ. Like thank you for doing that, and that is how you have built and reach this point, and that's such a powerful frame in itself, because sometimes क्या हो जाता है, we for a lot of people uh, उनके जर्नी में स्पेशली हीलर्स होते हैं, डोंट हैव इनफ, you notice things and you just went with that, and of course you made yourself available to people, and it was right place right time, and people responded, and that has shaped your, like you said, you built a community, and you've done sessions, group sessions आपने किए हैं. So I'm sure people listening will, they will make a note of this. Um, so that brings me to two things. So at this point, is there any program that you would like others to know? ताकि जो लोग यहाँ सुन रहे हैं इसको, but people who are listening to this or watching the pod, it will be an opportunity for them to ask you more details. Like, is there any particular program, anything that you're doing at present, so that they can find you online? Is it like, tell us a little bit ओके। more about that program, वो जो आप कर रहे हैं अभी? राइट नाउ अभी ऑनलाइन पे तो कोई प्रोग्राम नहीं है, हुँ, फ्रेंकली स्पीकिंग। हुँ। मेरा वो हैप्पीनेस प्रोग्राम ही है जो मेरे नॉन पर्सन्स में मैं लेती हूँ। हाँ, हाँ। जितने भी मेरे नॉन में है, हुँ, ऐसा सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन उस पे नहीं है, बट जो मेरे कांटेक्ट में है थ्रू जूम मीटिंग, आई राइट। गेट कनेक्टेड विद देम, एंड फिर उसके बाद हम करते हैं थ्रू दैट। अभी वही मैंने इतना उसको फैलाया नहीं है। हुँ, यस, उस प्रोसेस में है वो, जब राइट टाइम आएगा तो डेफिनेटली यूनिवर्स अपने आप फैला देगा उसको मिलियंस में। हुँ, जिसकी हेल्प मुझे मेरे थ्रू करवानी होगी वो डेफिनेटली करवा देंगे। राइट। बट अभी राइट नाउ मेरा सोशल मीडिया के ऊपर इतना ही है, बट यस, इन फ्यूचर आने वाला है जरूर। दैट प्रोग्राम्स वुड बी मनी के रिगार्डिंग रहेगा, हुँ, जस्ट बिकॉज मेरा जो नीश है वो मनी से ही मैं इस लाइन में आई हूँ तो मनी को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। राइट। First is money, हुँ, and second is relationship and self-awareness, which is the most important key for anyone's life. हुँ, हुँ, तो 3 प्रोग्राम्स हैं जो मेरे चल रहे हैं, जो मेरे नॉन वन्स में और जो मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड है थ्रू व्हाट्सएप एंड ऑल, उनके लिए अभी तक अवेलेबल है। Okay, good. So I'm sure, and like I said, यहाँ पे pod में we will be sharing your details, so people can definitely, when they come across this content, they can definitely reach out to you and follow you, and get to know more about whatever you're doing, and regardless of कब, whether it's now or even later, because ये हम लोग तो online कर रहे हैं, तो we don't know when people will find this, एक्चुअली। but at the right time they will find it. That we know, right? यस, So यस। that was one question. Another very important aspect, and you've kind of touched on it, but it'll be beautiful to hear from you. We've now, like I said, we've been doing these podcasts for now a little over 2 years. Initially, there was one question that I had not yet asked, but now I make it a point to ask, which is to do with family. क्योंकि ये ओके। जब हम लोग, इट्स लाइक सेइंग, जब हीलर होते हैं, कोचेस होते हैं, इन व्हाटएवर फॉर्म, राइट, विद व्हाटएवर डिनोमिनेशन अगर आप बोलो तो, टिपिकली यू आर नॉट चूजिंग अ जॉब, आप माने या। बिजनेस, बेसिकली आप एंटरप्रेन्योर हो, आप बिजनेस बना रहे हो, राइट। राइट? राइट। So there is some kind of guidance from above, there is some kind of guidance from inside कि आप ये करो, करते करते आप गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, that's sort of like its own, वो अपना गेम होता है, राइट? बट राइट। राइट। इसमें what earlier I had not asked, but now I make it a point to ask, is in connection with this, tell us more about family. Like, how has your family responded over the last, let's say,
maybe even the last 3 to 5 years, right? Because you've ओके, obviously been through ups and downs and you've learned different things. You've had things, you've had to let go of things through your story. How has your family sort of, taken to that? And how have they, like, where are they at this point on that journey? ओके, frankly speaking, I'm from a north side Okay. family, North Indian. I'm a North Indian, so my family background is North side families. North side की families में क्या रहता है, वहाँ पर ना मेंस कैसा रहता है एज अ प्रोटेक्टिव मोड पर, Mm, तो फॉर प्रोटेक्शन अर्ली एज में हो से भी हो, वो जल्दी निकल जाते हैं फैमिली से बाहर mm, और बिजनेस करने। mm, ऑब्वियसली मेरे डैड, यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ, एवरीवन, हमारा जो कम्युनिटी है वो पूरा का पूरा बिजनेस उससे ही है, हाँ, तो मेरे अंदर तो वो क्वालिटी आनी थी। हाँ, हाँ, मेरे हस्बैंड ने जॉब लाइन चुनी दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो ठीक, बट ओके, हम प्रॉपरली पूरा मारवाड़ी बोलते हैं ना, बनिए हाँ, मैं प्रॉपर बनिया हूँ। हाँ, तो वो तो हमारी वैसे ही नीश है बिजनेस लाइन, तो वो बिजनेस लाइन में आए, बट गर्ल्स बिजनेस लाइन में नहीं होती है जस्ट हाँ, बिकॉज करेक्ट, फ्रेंड्स जो होते हैं वो ऐसा होता है कि प्रोटेक्ट करना है फैमिली को, करेक्ट, ऑलवेज उनका ऐसा रहता है। अभी वो प्रोटेक्ट करके आते हैं, हमारे जो मारवाड़ी फैमिलीज होते हैं, नॉर्थ इंडियंस होते हैं, हाँ, हमें ये माना जाता है कि लेडीज को आने के बाद उनकी केयर करनी चाहिए, सो हाँ, दैट वो पूरे दिन के थके हुए इतनी मेहनत करके फैमिली के लिए, देन वी सपोज टू हेल्प देम आउट। हाँ, वैसे ही अभी सिनेरियोज, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ। अर्लियर तो मेरी जो बड़ी फैमिली थी, मतलब जेठ जेठानी, ओके, सास ससुर सब कुछ साथ में हुँ, थे, तो अर्लियर सिनेरियोज लाइक अभी 9 पीपल्स इन अ हाउस रहेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। करेक्ट, ऐसा जितना ऊपर नीचे वाला सिनेरियो नहीं हाँ, था, नहीं है। हाँ, दोज़ काइंड ऑफ सिनेरियोज गॉन थ्रू हुए। अभी मम्मी है मेरे, मदर इन लॉ, शी इज़ लाइक, वो पर्टिकुलर है कि इसको ऐसे बनाना है, इसको हाँ, वैसे बनाना है। तो उनके पीछे-पीछे, मम्मी अभी ठीक है? हाँ, अभी नहीं ठीक है। तो वो सब सिनेरियोज़ करते-करते वही कोविड में इट्स लाइक हाँ, पूरी ज़िंदगी यही करने वाले। राइट, तो उसके बाद एक उभरे कि नहीं अभी थोड़ा चेंज कर, हुँ, बट ऐज़ अभी माय मॉम, मदर इन लॉ, वो अडैप्टेबल नहीं थी इन सब चेंजेस के। घर पे काम को, अगर मैं मेरा बिज़नेस की तरफ ज़्यादा फ़ोकस्ड रहूँगी, करेक्ट, एज़ आई सेड कि मैंने क्लासेस ओपन की, मैं दोनों तरफ भाग रही, घर का करके जाऊँ, वहाँ पे सँभालूँ। तो करेक्ट, बच्ची, मेरी बेटी है, एक बेटी है, वो कहीं बच्चों का टाइम जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। बिल्कुल, तो मेरे मदर इन, हुँ, तो उसकी वज़ह से मुझे वो क्लासेस, अंदर से ऐसा फीलिंग आया कि यार मैं सपोर्टेड फील नहीं कर पा रही हूँ। मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल, अपनी जगह पर वो भी सही थे, देखा है उन्होंने वही माँगा था एज़ अ बहू, उन्होंने मुझसे भी यही माँगा था कि तुम एज़ अ बहू तुम भी यही काम करो। करेक्ट, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा था उनको, तब थोड़े बहुत सिनेरियोज़ हुए, तब मेरे मन में और ज़्यादा आने लगा, नहीं मुझे कुछ तो बनना है। फिर टाइम थोड़ा बीतता गया, उनकी तरफ से भी रिस्ट्रिक्शंस थी, मैं भी दोनों तरफ भाग रही थी, करना है। मेरे हस्बैंड इज़ लाइक दोनों तरफ से पिस रहे हैं, बीवी की सुनो कि मदर इन लॉ, माँ की सुनो कि बीवी की। फिर मैंने उनको बोला, "आप बीच में से निकलो, हुँ, जस्ट बिकॉज़ आप जितना बीच में आओगे आप फँसोगे, कोई फ़ायदा नहीं है बीच में आकर।" अभी जैसे आपकी भी वाइफ़ है, दोनों में फँसना डज़न्ट मेक सेंस। बेटर मैंने उनको वही बोला, "मम्मी मेरी, हुँ, मैं अपने आप हैंडल करूँगी, आप बीच में मत घुसो।" तो पहले तो उनको मैंने फ्रेम से साइड किया, हुँ, फिर मम्मी को बैठ के समझाया, एक बार समझाया, नहीं समझे, 2 हुँ, बार समझाया, नहीं समझे। फिर मुझे खुद को ये हीलिंग और इनके थ्रू पता, तो जब कभी भी वो ऐसा बैठे होते थे बाजू में और बोल रहे थे, नहीं ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वाज़ लाइक बाजू में बैठे-बैठे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कहीं न कहीं वो मेरे वैसा बोलने से उनकी वाइब्रेशंस चेंज होने लगी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। जैसे अभी मैं रूम में बैठी हूँ, ठीक है? बाहर मम्मी डाँट रहे हैं, सबकी परेड ल सबकी, सबकी इन द सेंस भी, मेरी बेटी खड़ी है, उनकी भी। मैं मेरे रूम में काम, मम्मी ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ऐसे पड़ा है, वैसे पड़ा है। बाय द एज उनकी भी एज हो गई है, तो उनसे इतना ज़्यादा होता नहीं है, एंड आदमी ऐसा चिड़चिड़ा तो वैसे ही चिड़चिड़े हो रहे। मैं अभी सोच रही हूँ मैं बाहर जाऊँगी, बाहर जाती मेरे को डाँट, क्या करूँ? आई वाज़ लाइक कीप ऑन थिंकिंग। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने चीज़ें अफ़र्मेशन सीखी, एनएलपी सीखी, तो एनएलपी के बस कीप ऑन सेइंग इनसाइड माय माइंड, मम्मी मुझे बहुत प्यार कर, मम्मी मुझे बहुत प्यार कर, मम्मी मुझे बहुत प्यार कर, मेरा तो दुलार करती है। आई वाज़ कीप ऑन रिसाइटिंग दीज़ वर्ड्स इन माय हेड। फिर मैंने गेट खोल के बाहर आई, जो मेरे मम्मी सबके ऊपर चिल्ला रहे थे कि परेड लगा रखी थी, "कन्नू तू क्या खाएगी?" अमेज़िंग, टोन वाज़ ऑटोमैटिकली चेंज्ड। ये ड्रास्टिकली चीज़ें मैंने खुद ने देखी है मेरी फैमिली में, मेरी मदर इन लॉ, एंड यू वोंट बिलीव, अभी के सिनेरियोज़ कैसा होता है कि
कुछ भी चीजें होती है, मेरे हस्बैंड से पहले मेरी मदर इन लॉ मुझसे पूछती है, "कन्नू तेरे लिए क्या बनाना है?" कौन-सी मदर इन लॉ बनाती है आज के टाइम पे? मुझे बोला जाता है, अभी मेरे मदर इन लॉ को जाना है मतलब हमारे नेटिव एरियाज़ में जाना है, बट शी इज़ लाइक, "अगर मैं चली जाऊँगी तो पापा का ध्यान कौन रखे? चक्कर में तू तेरा काम नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं नहीं जा रही।" शी इज़ लाइक इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुँ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ ये एक्टिविटीज़ कर। हुँ, तो पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने सिर्फ थैंक यू सीखा था क्योंकि उससे इतना ट्रांसफॉर्मेशन था, बट जब मैंने वो हीलिंग पावर सीखी, दोज़ ओल्ड कनेक्टेड विद द पास्ट, मैंने 3 चीज़ें लाइफ की सीख, वन इज़ पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर। हुँ, पास्ट हमें इनहेरिटेंट बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर स्टक होती हैं। तो जितने भी मेरी इनहेरिटेंस मिली, जो मेरे अंदर स्टक था, कहीं न कहीं वो मेरी मदर इन लॉ में भी स्टक है। वो मेरे हस्बैंड, तो ज़रूरी है उनको हील करना। अभी मेरे को इन सब पे बिलीव है, मैं कर रही हूँ, बट उन लोगों को बिलीव नहीं, उनको कौन करवाएगा? तो उनको कौन करवाएगा? इसके लिए ना मैंने एक कहावत कहीं तो सुनी थी हुँ, कि फैमिली में, वो मैंने शेयर मार्केट के रिगार्डिंग सुनी थी हुँ, कि आगे का टाइम ऐसा होगा कि एक इन्वेस्टर ज़रूरी है, शेयर मार्केट इन्वेस्टर ज़रूरी है हर एक फैमिली में। द सेम वे मैं बोलती हूँ हर एक फैमिली में एक हीलर ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज़ उस फैमिली को वो एक पर्सन के हाथ में होता है। यूनिवर्स ना भगवान जी एक जने को वो पावर देते हैं। तो आई ऑलवेज़ फील ब्लेस्ड, मेरी इस फैमिली को हैंडल करने के लिए मुझे वो पावर मिली है। और इसके ना सिनेरियोज़ मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं दूँ सिनेरियोज़, आपकी लाइफ़ में ना चीज़ें बहुत रिपीट होती हैं। हुँ, जस्ट लाइक अभी जैसे मेरी मदर इन लॉ का सिनेरियो मैंने आपको बताया, तो ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा था अनलेस अंटिल मैं उसको ब्रेक नहीं करती। करेक्ट। वो भी उन्हें प्रीवियसली इनहेरिटेड मिला था। हुँ, बेस्ट एग्ज़ाम्पल जिसको सब कोई जानते हैं, स्टीव जॉब्स। हुँ, स्टीव जॉब्स का अगर मैं ऐसे उठाऊँ पैटर्न वाइज़, जैसे हुँ, हम डिस्कस करते हैं पैटर्न्स क्या होते हैं, तो स्टीव जॉब्स एक पर्सन है जिन्होंने अपने, जब वो पैदा हुए तो उनकी मदर ने उनको छोड़ दिया था जस्ट हुँ, बिकॉज़ वो मैरिड नहीं थी। तो उनकी मदर ने उनको छोड़ दिया था, कहीं न कहीं उनके अंदर वो इमोशंस, तो हुँ, वो आगे बढ़े, उनको बहुत अच्छी फैमिली और उन्होंने ग्रो किया, अच्छी फैमिली, अच्छी ग्रोथ, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्होंने एक एप्पल कंपनी बनाई, जिसको आज तक कोई बीट नहीं कर पा रहा है। लिटरली आज तक उसकी नीश को कोई बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो जो जर्नी होती है ना, वो रिपीट होती है बाय इटसेल्फ। जैसे उनकी खुद की मदर ने उनको छोड़ा, द सेम वे एप्पल कंपनी ने उनको छोड़ दिया। हुँ, तो दिस इज़ कॉल्ड पैटर्न एंड दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल। तो ये जो पैटर्न्स होती हैं, ये रिपीट होते हैं। फिर उन्होंने अपने ऊपर वर्कआउट किया और वो पैटर्न जो था कहीं न कहीं ब्रेक करके वो भी मोटिवेशनल स्पीकर बने थे, एज़ एवरीवन नोज़। जस्ट बिकॉज़ वो, जैसे मैंने आपको बोला, हर एक फैमिली में एक हीलर ज़रूरी होता है, अगर हमें पास्ट की चीज़ों को क्लियर आउट करना हो। द सेम वे उन्हें अपनी लाइफ़ को चेंज, ऐसे ही मेरी फैमिलीज़ में भी ना बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी, मेरी क्लास में इंडिया का नॉर्थ साइड है। नॉर्थ साइड इज़ अटैक्ड बाय द मुगल्स। हुँ, तो वहाँ पर कैसा सिनेरियो था, मुगल्स के थ्रू अटैक हुए। तो वहाँ पर सिनेरियो कैसा था कि जेंट्स को आगे बढ़कर अपनी वाइफ्स, बच्चों को, लेडीज़ को सेम सिनेरियो आप आज भी देखोगे। वहाँ की लेडीज़ को बाहर निकलने नहीं मिलता है। राइट। उनको ऐसा रहता है कि तुम अंदर रहो, या फिर लड़की पैदा होते ही मारने का सिनेरियो, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने वो सब टॉर्चर सहा था। हुँ, और वो धीरे-धीरे इनहेरिटेड आज भी मिला है। सेकंड एग्ज़ाम्पल, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जब मुगल्स आने की ट्राई की थी, तब छत्रपति शिवाजी महाराज थे, हुँ, ठीक है? तो उस टाइम पे उनके कैसा था, जेंट्स, लेडीज़ सब आगे होकर फाइट करेक्ट। करते थे, सब कुछ उनके ऐसा कुछ नहीं था दबाने वाला कि तुम पीछे रहो, हम लोग बीट हुँ, करते हैं इन लोगों को। दैट्स व्हाई आज के टाइम पे अगर आप महाराष्ट्र में देखोगे ना, एवरीवन इज़ लाइक ओपन माइंडेड, इवन द जेंट्स एंड द लेडीज़ सभी जॉब करते हैं। यही अगर अपने नॉर्थ साइड के लोगों को बोल दें ना लेडीज़ जॉब करेंगी, क्यों आदमी ढंग से कमा नहीं रहा है क्या जो लेडीज़ का जॉब, क्योंकि वो इनहेरिटेड हमें वैसे। अभी थर्ड एग्जांपल मैं लेती हूँ साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया में मुगल्स नहीं गए थे, लेकिन वहाँ पर ना कल्चर को वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, हिंदू से मुगल बन जाना या हिंदू से हुँ, चेंजिंग, क्या बोलते हैं यार, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। कल्चर को
चेंज करना। तो उनका वो था कि कन्वर्जन, साउथ में कन्वर्जन्स बहुत ज्यादा हो रहे, दैट्स व्हाई उन लोगों को वैसा, उस टाइम के लोगों को ऐसा हुआ कि हमें अपने संस्कृति को, हमारे कल्चर, तो अगर आप देखोगे ना, साउथ इंडियंस ऑलवेज लाइक अपने कल्चर को कंटिन्यू, मे बी नॉर्थ इंडियाज इतने नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी फ्रॉम दैट टाइम बीइंग, उनकी ये थी कि हाँ, हम अपने घर की लेडीज, वहां पर 10th भी पास कर लिया लड़का, चलो जॉब पर वैसा वाला था, वहां पे स्टडीज का ऐसा सच नहीं। लेकिन साउथ इंडिया में कल्चर, इवन आप 5th क्लास के, 5 ईयर के किड को भी, उसको भी पूरे के पूरे रामायण महाभारत सब, ये सब इनहेरिटेड। उससे पहले इंडिया बहुत ब्यूटीफुल था, संत महात्मा, सबसे इंटेलिजेंस सिटी जो बोलते हैं ना, इंटेलिजेंस जो कूट कूट कर भरा है, वो हम इंडियंस में भरा है, बिकॉज ऑफ अटैक्स दैट, गुलामी की थोड़ा सा हमारा वैसा हो गया है, पास्ट हमारा थोड़ा सा बिगड़ गया है, फियर, एंजाइटी, वो सब चीजें हम में आ गई है, उसको जैसे जैसे हम रिलीज कर देंगे, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट सिटी और द कंट्रीज, दैट्स व्हाई मुझे जो आपने ये अभी ये आपने जो कम्युनिटी बनाई है हीलर्स की, वो सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि हीलिंग का सबसे ज्यादा जरूरत है हमें यहाँ पर, जस्ट बिकॉज वो जो बीच का जो पीरियड था ना, वो अगर रिमूव हो जाते, पास्ट एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस, तो इंडिया में सबसे वंडरफुल ब्लेस्ड सिटी। Yes, that's beautiful. I love how you tapped into the question and you've taken us on a journey of India and India ka history, and like you say, there are patterns that you're noticing. So that's a beautiful way of framing it. Uh, one question, of course, which जी। is very relevant आपके journey में, कि of हम्म। course one is family, the other is as a healer, as someone who looks at vibrations, and of course there is the like you tapped into trading, right? Uh, i- in this context, you would have what the segment basically is what we call the journey of um, your mentors. Okay, it's called the journey of mentors. Matlab ki in your journey over these last 5-6 years, there would have been moments where and वक्त पे at just the right time you would have come across some mentor that was able to like literally जो आपका whatever was your prayer, it was answered, right? And you maybe you learned something or someone showed up and that helped you kind of rise up again. Hmm? So this is the segment where one, of course, you get to express your gratitude for these people. So you can definitely name them कि ये हो रहा था मेरे लाइफ में and then this person showed up and thanks to this person I learned something or there was a message that I received, right? So definitely share a राइट। little bit about some of these stories. And I also believe कि आपके इस sharing से someone who is on the who also is looking out for some help by listening to you, it could very well give them that missing piece that they are looking for, right? So फॉर श्योर। do share who would be a couple of these people जो आप correct time पे वो आपके life में आ गए and thanks to them there was a shift that you experienced. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे जो फर्स्ट मेंटर हैं, हाँ, उनके साथ मैं डायरेक्टली नहीं, उनको मैंने यूट्यूब पर ही, जैसे कहते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, right. हिज नेम इज डॉक्टर स्नेह देसाई। तो डॉक्टर स्नेह देसाई की मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, इसके बाद आई वाज सो इंस्पायर्ड, मैंने चलते फिरते ट्रीज को भी थैंक यू बोलना स्टार्ट किया, और उसकी वजह से मैंने स्टार्ट अर्निंग Mm, वेरी वेल। mm, फिर उसके बाद चक्रा हीलिंग का मैंने, यूट्यूबर है एक, mm, स्वर योगी करके, ही इज मोर अबाउट टॉकिंग टू द, मतलब वो स्पिरिचुअलिटी की, लकीली फॉर मी, पीरियड ऑफ टाइमिंग ऑफ 1 मंथ, ये कहते हैं चक्रा हीलिंग का mm, कोर्स लॉन्च किया था फॉर 1 मंथ, उसके बाद उन्होंने सेल नहीं किया, पर उस 1 मंथ में मैंने वो बाय किया और उसके बाद मेरे अंदर ड्रास्टिकली चेंजेस। फिर उसके बाद जब मेरे अंदर एक फॉल आया, तो mm, मुझे एक हैंड होल्डिंग देने के लिए मेरी पर्सनल हीलर मुझे मिली, हर नेम इज सुमित मैम। उस सुमित मैम ने मुझे बहुत हेल्प की, वो मेरे साथ साथ रही जर्नी में, उन्होंने काफी सेशंस भी, उनकी वजह से मैंने बताया मेरे हस्बैंड की 3 टाइम्स इनकम हो गई थी बिकॉज ऑफ हर ओनली। फिर उसके बाद जर्नी में आगे आगे ऐसा मेंटर्स की और जरूरत आने की, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है, correct. ठीक है, मैं हीलर के जैसा काम दूसरे हीलर्स के ऊपर मैं कब तक बेस्ड रहूंगी, देन
मुझे कोच मिले, हिज नेम इज मितेश खत्री सर। हुँ, तो मैंने उनके फ्यू ऑफ कोर्सेज खरीदे, फिर धीरे 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 और आगे बढ़े। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अलोन फील कर रही हूँ, तो आई कम टू नो अ कोर्स, एनर्जी क्वीन। तो मैंने वो वहां पर ज्वाइन किया। वहां पर मुझे एक वंडरफुल कम्युनिटी मिली, जहां पर मैंने लोगों को हेल्प आउट किया। राइट। उनके थ्रू मुझे एक्सपीरियंस मिला कि लोग अगर गड्ढे में घिरे हुए हैं तो उनको कैसे बाहर निकालना है। जर्नी आगे बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। फिर मुझे देव समिता में वो मतलब कैसा होता है, ट्रेडिंग करते करना आप खुद एक शेल में हुँ, आप सोचते हो कि हाँ मेरी लर्निंग कंप्लीट हो गई है। ऐसा नहीं होता है। हुँ, क्यों? क्योंकि जब आप दूसरों को हेल्प आउट कर दूसरों को हील करते हो तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस आपकी फ्रीक्वेंसी भी डाउन हो जाती है। देन डेफिनेटली यू नीड अ हीलर, यू नीड अ कोच जो आपको उस टाइम पे हाथ पकड़ के बाहर निकाले। देन कहते हैं ना, पंडित को भी बड़े पंडित की जरूरत, हीलर को भी एक अनदर हीलर की जरूरत होती है टू क्लियर योर इमोशंस। वो चीज के लिए मुझे देव समिता मिली, जो मुझे नाउ अ डेज हेल्प कर रहे हैं, एंड शी इज हेल्पिंग मी अ लॉट। वो मुझे मेरे सबकॉन्शियस में टैप करवाती है। इसमें टैप करवाने के वो मुझे बताती, खुद के अंदर ही फाइंड आउट करती कि मेरे अंदर क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मुझे कितना फैलना है, कहाँ तक, किस लेवल तक जाना है। हुँ, ऐसा विजुअलाइज करके और सामने देख कर ना, आई वाज लाइक वाओ। तो उन्होंने जब मुझे करवाया तो सबकॉन्शियसली जब मैं खुद के अंदर गई तो मुझे ये पता चला कि यस मुझे ईएफटी के, तो वहां पर मैं बहुत सारी ऐसे ऐसे न्यू 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 थिंग्स कम अप आ रही है, चीजें पता चल रही है कि मैं खुद के ऊपर कैसे वर्क करूँ और सामने वालों के ऊपर कैसे वर्क करूँ थ्रू दैट। से भी मुझे मिलवाया विच इज अ बिग राइट। ड्रीम फॉर मी। आपसे मिलकर मैं पॉडकास्ट करूं एक कम्युनिटी में, इनर्स कम्युनिटी विच इज अ बिग थिंग। लाइक माइंडेड पीपल से मिलना टू टू ऑसम, कि जहां पर हम अपने एक दूसरे के साथ बात कर सके, न्यू आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। ब्यूटीफुल, अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। या दैट्स अमेजिंग, नो वर्ड्स। यस। तो वही था कि ये जो लाइक आई सेड वी हैव नाउ क्रॉस्ड ओवर 100 पॉडकास्ट बट वो ये वाला क्वेश्चन जो था व्हिच वाज द जर्नी ऑफ मेंटर्स फर्स्ट 25-30 पॉडकास्ट में ये पॉइंट मेरा मिस हो गया बिकॉज ओके। एंड आई एम श्योर यू आल्सो हर्ड इट लॉट ऑफ टाइम्स पीपल विल से हाँ मैंने मेरे भी कोचेस हैं वगैरह वगैरह वेरी रेयरली डू पीपल टॉक अबाउट इन डिटेल या उनके नाम राइट फॉर सम रीजन आई डोंट नो ओके। व्हाट दैट इज तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि नहीं especially on a podcast it's a beautiful opportunity to pause and reflect on ये फरिश्ते कौन थे जो आपके लाइफ में आए एंड इनके आने से का इट्स लाइक यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ पिवट टू टर्न अ लिटिल बिट इवन इफ इट इज अ 1 डिग्री टर्न उस टाइम पे शायद नहीं मालूम बट इट्स लाइक 3 मंथ्स लेटर 6 मंथ्स लेटर यू रियलाइज लोग आ गए तो वरना कहाँ से कहाँ जाती हाँ थी लाइफ के लिए। एक बिग थैंक यू तो डेफिनेटली बनता। यहाँ पर बैठे बैठे देते रहे, लेकिन जितनी बार ये वीडियो कोई देखेगा मुंह से अगेन एंड अगेन थैंक यू उन सब के लिए निकलेगा। एंड जो आई जस्ट रियलाइज यस। जहां से आप शुरू किए हम वही लूप को अभी इन अ वे वी आर क्लोजिंग दैट लूप you started when you said कि एक बात था which was about thank you and you would go about thanking the trees right या in a way यहाँ पे आपने जो thank you बोला है it is like actually expressing that gratitude पेड़ जो ऐसे जो आपके पीछे भी है हाँ just like you have the trees this is like your an opportunity where you've been thanking these people राइट। in one go. So when you talk about frequency, you talk about energy, like in one go, it's like you're literally like sending it out into the universe. So ripple effect तो होगा ही, right? फॉर श्योर फॉर श्योर। वो मैं मिरेकल्स एनी टाइम एवरी टाइम देखती है। लिटरली यू वोंट बिलीव, मेरे को ऐसा चाहिए होता था, मेरे को 2 लाख रुपीज मिले, मैं लिटरली धमकी देकर आती थी ट्री को। पीपल जो जैसे अपने पीपल की, तो पीपल को मुझे नहीं पता, मुझे इस महीने ना 2 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। Right. यू वोंट बिलीव, इस मंथ मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपीज, चाहे वो किसी को देने हो। माई हस्बैंड इज लाइक तेरे ब्रदर के को रिटर्न कर दी, ठीक है ऐसा ही। फिर मैंने यूनिवर्सिटी, मेरे को 5 लाख चाहिए तो Mm. ठीक है। नेक्स्ट डे विद इन 10 days इन मदर इन लॉ के अकाउंट से मेरे पास 5 लाख रुपीज आए। माई हस्बैंड इज लाइक वो घर खत में पेमेंट करते। मैंने कहा "हाँ, भगवान जी मजाक करने के लिए मैं ही मिलती हूँ। मैंने आपको धमकी देकर 2 लाख रुपीज मांगे, 5 लाख रुपीज मांगे, आपने दे दिए, फिर वापस भी ले लिए। मैनिफेस्ट मैं ऑलवेज करती है, यू जस्ट बिकॉज उतना जितना हम ग्रेटफुल रहते हैं ना, चीजें आपको मिलती
उस टाइम पे वो ऐसे चले इसके लिए गए थे जस्ट बिकॉज़ मेरा व्हाय नहीं, मुझे क्यों चाहिए? देयर करेक्ट। वाज़ नो व्हाय। इट वाज़ लाइक आज टेस्ट करते हैं भगवान जी का। हाँ, टेस्ट करने गई तो उन्होंने डबल टेस्ट कर दिया मेरे को। दैट्स बट मैनिफेस्टेशन बहुत वर्क करती हुँ, है। जो आप दिल से थैंक यू बोलते हो ना, हुँ, ड्रास्टिकली हेल्प करता है, नो डाउट है। ब्यूटीफुल। एंड एज़ आई सेड बिफोर, इस पॉड का यही मकसद है। वन, यू नो, इट्स एन अपॉर्च्युनिटी फॉर यू टू पॉज़ एंड रिफ्लेक्ट ऑन आपके जर्नी में। द सेकंड ऑफ कोर्स इज़, जब आप ये करते हैं तो उसका यू नो द रिपल्स गो आउट इनटू द वर्ल्ड, इनटू द यूनिवर्स, एंड देयर इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। जब होगा, कब होगा, वो अपना डिपार्टमेंट नहीं है, राइट? वो वेरी अपने ट्रू। आप हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स, you know, as I've said before also, ये मेरा secret, not so secret conspiracy है to meet like-minded people, because as you also said that there is that turn happening now, and ये जो काम सौंपा गया है, ये एक या दो लोग नहीं कर सकते हैं। इट इज़ लाइक क्या बोलते हैं, बड़ा सा जो सबसे दुनिया में सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा होता है। इट्स लाइक, आई एम श्योर यू हैव कम अक्रॉस, लाइक जो डिस्पेंजा बोलता है, ही टॉक्स अबाउट हाउ व्हेन मेडिटेटर्स कम टुगेदर, वो वाला जो रिपल होता है, इट्स अ डिफरेंट एनर्जी। हर दिन वेरी अपने डिफरेंट। आप अपने बेड में या अपने मैट पे हम लोग बैठ के प्रोसेस करते हैं, दैट्स वन थिंग। नोइंग दैट वी हैव पीपल लाइक दिस, लाइक माइंडेड पीपल, एंड एट द राइट टाइम टुमारो व्हेन वी आर कॉल्ड टुगेदर टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट, हियर इट्स लाइक ऑलरेडी वो कनेक्शन बन चुका है। सो दैट्स द अदर रीज़न व्हाई ये पॉडकास्ट है। And like I said, it's designed, of course, for us, but more importantly, to tell other people, जो लोग especially, like we talk about the early stage, जब ये होता है कि okay, I know I'm working on myself, वहाँ से हम लोग जाते हैं कि ठीक है, now I am, feeling that healing is happening, and the next phase is I can help other people. वो उसमें हम लोग शुरू कर लेते हैं, and in that context, we start, as I said, we start getting more certifications and we start learning things. Then somewhere along the way फिर से हम लोग वो ऊपर-ऊपर करके गिर जाते हैं, राइट? तो यस, दिस वेरी ट्रू। पॉड इज़ प्राइमरीली फॉर पीपल हू आर इन दैट फेज़। ऊपर वो राइज़ होगा, बट एट दिस पॉइंट क्वेश्चन क्या ये होगा? कब होगा? So वेरी it's like ट्रू, what वेरी you call ट्रू। like the early stage of being the healer, being the coach. My intention, this is my intention of sending out these vibrations to people out there who are at that phase. आपके story से वो, they get inspired, and I'm sure for people who have reached this point, somewhere they believe that, हाँ, you know what, if Kanu ji can have this kind of a story, तो फिर हमारा भी कुछ हो सकता है. And that shift can happen at any moment, एट So एनी मोमेंट, एट एनी yeah. मोमेंट। मैं हमेशा जैसे आपसे पिछली बार भी बात हुई थी मेरी, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो आपने अभी ये गैदरिंग की है, Mm, वो गैदरिंग मतलब एक होता है कि हम किसी को हेल्प आउट कर रहे हैं। mm, अभी जैसे मैंने बोला कि एक एज़ अ हीलर कहीं न कहीं डाउन हो जाते हैं, mm, सामने वाले की एनर्जी ले तो उनको हील करने की गैदरिंग जो होती है वो एक पुशबैक देती है। फॉर हीलर यू आर डूइंग फंटैबुलस वो सुपर से डुपर वाला सिनेरियो यू आर डूइंग दैट थिंग right. जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सभी को इकट्ठे लाना, साथ मीट करना, उनकी बातें जानना, खुद की बातें बताना, वो सब बातें दूसरे दुनिया को भी दिखाना सो दैट अगर वो कहीं पर स्टक्ड हैं तो वो भी बाहर आ सके। उनको ना चाहते हुए भी एक हैंड होल्डिंग मिल सके। जैसे मुझे जो हैंड होल्डिंग मिली थी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो मुझे हैंड होल्डिंग मिली थी डॉक्टर स्नेह देसाई की। उनके साथ मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, वही यूट्यूब के थ्रू ही मैं उनसे मिली थी Mm, और उनके 1-2 लेसन्स मुझे ऐसा स्टक किए कि सुबह से देखते-देखते मैंने शाम कर दिया और पूरा 2-3 घंटे कंटिन्यूअस देखती रही। द सेम वे यू आर क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी एवरी वीक। mm, एवरी वीक यू क्रिएटिंग दैट एनर्जी। डोंट नो किसका कब वो वीडियो हाथ पकड़ के बाहर ले आए। वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। mm. तो हैट्स ऑफ टू यू जो आप ये डेली बेसिस पे काम करते हो। Thank you for गैदर saying that. करना फिर उनको उनके साथ एक कॉल अरेंज करना जो दूसरों को हेल्प आउट कर सके। नथिंग लाइक मतलब Right. फंटाबुलस जो चीज़ आप Thank कर you रहे हो। so much for saying that. And यही है, the intention is that to to create this kind of a ripple, and it's beautiful when, like now, I get to hear that as feedback कि
uh, to be seen and to be heard and to reflect that. Thank you for reminding me कि ये काम हो रहा है and that it is making an impact out there. Like I said, this is, it's like a picture abhi baki hai, and there will be many, many more opportunities to share our stories and to inspire other people, because I'm sure by now like you also mentioned about like हर family में एक healer होना चाहिए. For people who already have had that calling, somewhere there is a blessing that has been noticed, that has been acknowledged. So वो already, right? Yeah. Like I said, so it is our, in a way, it is, our gift that we get to remind them कि बस आप लगे रहो, आप बस शो अप करते जाओ, बाकी एट द राइट टाइम इन द राइट वे वो होगा ही होगा. सो थैंक यू. अब गो जैसे अहेड. बेस्ट एग्जांपल में अभी जैसे आपने पूछा कि आपकी जर्नी फाइंड आउट की, मेरे को भी इतना नहीं पता था मैंने भी कभी ऐसा नोटिस नहीं किया, बट आफ्टर टॉकिंग टू यू कि 6 इयर्स हो गए मुझे इस जर्नी में, करेक्ट. बट आफ्टर मीटिंग यू मैंने 6 इयर्स निकाल दिए इसको लर्न करते हुए, फिर उसको अप्लाई करते हुए। करेक्ट. बट जैसे आपने अभी ये कम्युनिटी बनाई थ्रू दिस, जिसको जैसे आपने बोला कि किसी के अंदर ऐसा फीलिंग आया है कि वो उस फैमिली के हीलर बन सकते हैं, बट हम्म. बिकॉज ऑफ यू वो जो कम्युनिटी में अगर वो आते हैं तो एक पुश जल्दी मिलता है। मुझे हम्म. 6 इयर्स लग गए, हाँ. बट बिकॉज ऑफ योर कम्युनिटी उनको मे बी 1 और 2 ईयर में वो ग्रो कर सके और बिकम अ हीलर, और फिर नो डाउट अच्छे लेवल पर पहुंचकर दूसरों को हील कर सके, और अपनी फैमिली को सबसे पहले, खुद को, फिर फैमिली को, एंड देन फिर यूनिवर्स को वो बाहर लेकर आ सके। Exactly. In fact, one final thing for the moment. एक तो, like you या said, 6 years. As I was sharing with you the other day also when we met briefly, कि मेरा story जो है, it is now when I look back, it's a little over 20 years. The one thing I ओ have learned is कि show up. शो अप करो कि जो हर एक का लिखा हुआ है, जैसे बोलते हैं ना कि कहीं पत्ते पे वो जो होगा वो अलग बात है. हाँ It will anyway happen. As long as you keep showing up. And also that what I learned in the last 6 years, my intention is to tell other people कि you do a different journey of 6 years. लेकिन जो हमने सीखा है वो आप 1 या 2 साल में भी उसको सीख के इंटरनलाइज करके आप जाके दूसरों को हेल्प कर सकते हो. एंड व्हेन यू हैव राइट राइट पीपल अराउंड हु आर लाइक माइंडेड, सब हीलर हैं, आपका दुःख हम समझते हैं, मेरा दुःख आप समझते हैं, फैमिली में वो अच्छा आप हमेशा वेबिनार कर रहे हो या यू आर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मशीन, वो बात हम समझ सकते हैं, राइट? वेरी वो ट्रू नहीं समझ सकते हैं, उनका डिपार्टमेंट है ही नहीं समझने का। माने इफ दे अंडरस्टैंड इट्स अ यस बोनस, इफ दे डोंट अंडरस्टैंड कोई बात नहीं। हमारा खुद का कम्युनिटी है, वेयर यू राइट जस्ट से हाँ, आई एम लाइक डूइंग दिस बट नथिंग्स हैपनिंग, आई डोंट नो, नो प्रॉब्लम। ये तो आज की बात है, कल कुछ और होगा, और you'll have a breakthrough tomorrow because we don't know when that will happen. But the main thing is आप बस वेरी ट्रू शो अप करते जाइए, राइट? एंड ट्रू मिरेकल्स ट्रू हैपन, ट्रू वैसे ही तो मिरेकल्स होते हैं, राइट? तो जैसे मेरे साथ हुआ आपके पॉडकास्ट में आकर। so which is why, like I said, the intention, and for those of you who are watching at up to this point, please do reach out to Kanu and follow what she's doing. And I'm sure आपके और भी programs ऐसे बनते जाएंगे which will help people, especially if they're looking at these areas, whether it's money, whether it's frequency, relationships, and आगे जाके भी, it's just the beginning. I'm sure आगे जाके 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, there will be more and more things that you are developing and designing, which will help others. So, please do, we will of course add your links, so do follow Kanu online. And before we wrap, of course, Kanuji, thank you for making the time to be here and share your story and your energy. And I'm sure ये ripples already लोगों को पहुंच चुके हैं, and it will keep making those shifts in their lives. So thank you for your stories, your energy, and your time. And wish you थैंक all यू the best. सो मच, थैंक यू सो मच And फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी my pleasure. शो अप करने के लिए। जैसे मैंने बोला मेरा ऑनलाइन एज सच नहीं है, Mm. बट बिकॉज ऑफ यू अभी मैं ऑनलाइन, अभी जैसे आपने बोला विद इन अ ईयर 2 ईयर ये कहाँ से कहाँ पहुंचेगा, यू डोंट नो द Right. सेम वे। Exactly. Right. थैंक यू Thank मुझे you. इतना पहुंचाने के लिए।
course. That's ये it's like one way to say it is it's one thing to do it alone, but जब हम लोग साथ-साथ मिलके करते हैं तो मज़ा भी आता है, हँसी-मज़ाक हो जाता है and there's a lot of lightness in the journey. So हम we get to go far as well, right? So wish you राइट। all the best. And for those of you who are watching up to this point, thank you because you've reached this point because you know, and I'm reminding you that you are special. That's why you've reached this point. That's why you've stayed connected to Kanu's story. And you can definitely reach out to her. And more importantly, especially if you are already a healer and a coach, remember that you matter and remember to keep showing up. That really is the key. And having said all of that, of course, as always, remember to live your purpose. We will, of course, be back with more pods, more amazing guests. So keep doing what you're doing and wish you all the best on your journey. And once more, Kanuji, wish you all the best. And here's to many, many more. थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन।